Hi students, welcome to the channel. We were discussing ratio, proportion and variation. आज की क्लास में भी हम लोग रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन के ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे. आप देखेंगे कैट में कैसे कैसे क्वेश्चन पिछले एक दो सालों में आए हैं और यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी दैट they are not of a very high difficulty level. That is what we said. If your basics are in place, we know regularly emphasize this, that if your basics are in place, you will be able to answer a majority of questions, especially in topics like arithmetic. Arithmetic के ज़्यादातर questions आप आसानी से solve कर सकते हैं. आज हम लोग कुछ question देखेंगे previous years के. So you can yourself see how simple they are. क्या कहता है? Mixture contains lemon juice and sugar syrup in equal proportion. So you have lemon juice and sugar syrup in equal proportion. एक mixture है. So let's say this is my mixture. इस मिक्सचर में लेमन जूस और शुगर सिरप इक्वल प्रोपोर्शन में है. सो ये 1 पार्ट होगा तो ये भी 1 पार्ट होगा. सो द रेशियो इज 1:1. फिर कहता है इफ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप इन द रेशियो 1:3. तो यू टेक शुगर सिरप अगेन एंड शुगर सिरप में आप इसको मिला दो मिक्सचर को और उसको किस रेशियो में मिलाओ? 1:3 में. तो देखो यहाँ पे मिक्सचर कितने पार्ट है? 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट और 1:3 रखना है. तो ये 2 पार्ट है तो 2 × 3 ये कितना पार्ट हो जाएगा? 6 पार्ट हो जाएगा. राइट. क्या कहता है? लेमन मिक्सचर एंड शुगर सिरप इन द रेशियो 1:3. सो मिक्सचर है, ये मिक्सचर हो गया और ये शुगर सिरप हो गया. दोनों का रेशियो 1:3 होना चाहिए. मिक्सचर का पार्ट अगर हम काउंट करें तो 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट्स हैं तो इधर कितना होगा? 6 पार्ट टू हैव द रेशियो 1:3. सो दिस इज द रेशियो इन विच विल हैव टू मिक्स द मिक्सचर एंड शुगर सिरप. फिर कहता है द रेशियो ऑफ लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन द न्यू मिक्सचर इज. तो आप देख लो लेमन जूस तो 1 पार्ट ही है बट शुगर सिरप कितना हो गया? एक तो मिक्सचर में है प्लस 6 पार्ट आपका शुगर सिरप में है तो 7 पार्ट हो गया. सो द आंसर विल बी 1:7. वेरी सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेट अवे. कुछ भी नहीं है. दीज आर एंड दिस इज कैट 2022 स्लॉट 1. यू कैन सी फॉर योरसेल्फ. डजंट रिक्वायर टू मच ऑफ practice. Even with small amount of practice you can answer these questions. Next देखो ये भी CAT 22 slot 1 का ही है. कहता है Pinky is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of number of persons standing ahead of Pinky to the number of persons standing behind her in the queue is 3:5. So let's say there is a queue, everybody is facing this direction and Pinky is standing here. So Pinky is here. Number of persons standing behind the queue and number of persons standing ahead of Pinky and behind her is 3:5. So 3:5. तो आगे 3 पार्ट होंगे, नीचे 5 पार्ट होंगे. So let's say 3x people are ahead of Pinky, then 5x people would be behind Pinky, है ना? 3:5 में है. फिर कहता है the total number of person is in the queue is less than 300. So total कितने लोग हो जाएंगे? 3x plus 5x 8x and plus this Pinky 1. This is my total number of people and this has to be less than 300. So this is less than 300. Now let us solve it. 8x less than 299. So x less than 299 upon 8. 8 3s are 24. 5 9. 8 7s are 56. 3 0. So 8 3s are 24. 7 and 5. Actually this much of detailed calculation, accurate calculation is not required. The moment you see it is 37 point something, that itself is sufficient here. इसके beyond कुछ करने की जरूरत नहीं थी. But anyway, x की वैल्यू आ गई हमारी. x has to be less than this number for total number of people to be less than 300. अब मुझे पता है कि number of people will have to be integers, so x also has to be an integer value. So the maximum that we can take for x की maximum value क्या आ सकती है? Maximum value of x that can be taken is 37. We cannot take more than 37 because 37 के बाद 38 ही लोगे. 37.3 37.2 तो नहीं लोगे. If you take 37.2 37.3, this number 3x will not be an integer and number of people should always be an integer. Therefore x has to be an integer
and less than 37.375. So the maximum that we can take is the largest integer less than this number, which is 37. अब 37 हमें पता चल गया x का वैल्यू, तो बोलता है कि कितने लोग मैक्सिमम हैं जो कि पिंकी से आगे हैं. सो x का मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर अहेड ऑफ पिंकी, ये नंबर निकल जाएगा. सो इट इज 3x. So 3 into maximum of x we can take is 37. So 3 into 37 will give you 111. Right. So my answer is 111. That's it. बहुत कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था. ओके, एक और देखो क्या कहता है. A tea shop offers teas in cups of 3 different sizes. Okay, so there are 3 different sizes. The product of the prices in hold on. So कहता है a tea shop offers tea in cups of 3 different sizes. The product of the prices in INR of 3 different sizes is equal to 800. So the product is given. So एक small cup होगा, एक medium cup होगा और मान लो एक large cup होगा. Small into medium into large, इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है. इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है? इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है 800 रुपीज. स्मॉल इंटू मीडियम इंटू लार्ज, तीनों का प्राइस का प्रोडक्ट दे रखा है कितना? 800 रुपीज. फिर कहता है द प्राइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द मीडियम साइज आर इन द रेशियो 2:5. सो स्मॉलेस्ट और मीडियम का प्राइस का रेशियो भी दे रखा है कितना है? 2:5. सो मान लो कि स्मॉलेस्ट को हम लोग ले लिए 2x, है ना, मीडियम हो गया 5x और लार्जेस्ट को मान लेते हैं सम z है, ऐसा z है. तीनों का प्रोडक्ट हमें मालूम है कितना है? 800. फिर कहता है इफ द शॉप ओनर डिसाइड्स टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द मीडियम वंस बाई 6 रुपीज. तो मीडियम और स्मॉल साइज का प्राइस 6 रुपए से बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 6, ये भी हो जाएगा 5x प्लस 6 इंटू जेड, ये सेम रहेगा. कहता है और जो प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट साइड रिमेन्स अनचेंज्ड, देन द प्रोडक्ट देन चेंजेस टू 3200. सो ये प्राइस अब कितना हो जाएगा? 3200 हो जाएगा. क्या कह रहा है? Read it once more. If the shop owner decides to increase the price of the smallest and the medium ones by INR 6, keeping the price of the largest size unchanged, largest को change नहीं किया, z का z ही रह गया, बट इन दोनों को 6 रुपए बढ़ा दिया, है ना. 2x plus 6, 5x becomes 5x plus 6. और तब इन तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है? 3200 हो जा रहा है. तो पूछा है सम ऑफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 3 डिफरेंट साइजेस. पूछा है ओरिजिनल कितना होगा. नाउ सी, यू कैन सी हियर दैट z remains unchanged. z तो चेंज नहीं हो रहा है ना, z is not changing. सो मेरा यहां जो प्रोडक्ट है और यहां का जो प्रोडक्ट है इसी में चेंज हो रहा है. द फर्स्ट 2 टर्म्स आर चेंजिंग, z is not changing, and my whole product is increasing by 4 times. 800 into 4 will give you 3200. So see, these types of question can be at best, solved by trial. If you are able to guess the numbers using some decent, so some thinking, there has to be some logic behind trials also. ऐसा नहीं कि बिल्कुल random guess work करना है, नहीं तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा. But if you carefully think here, do some proper intelligent guess work trial, you will be able to solve these questions in the least possible time. So we'll follow the same method here. Instead of going algebraically and solving it out, it is better to take up some numbers and see what is coming. मुझे ये पता है कि इन दोनों का प्राइस का रेशियो क्या है? 2:5 है. तो क्या क्या हो सकता है? लेट्स से अगर हम लोग इसको ले लें 2 स्मॉल वाले को और मीडियम वाले को ले ले 5, तो 2 into 5 कितना हो जाएगा? 10. तो z को मुझे कितना लेना होगा? 80 लेना होगा, तभी जाके 800 आएगा. तीनों का प्रोडक्ट 800 आना चाहिए. ये 2:5 है तो मैं इसको 2 लूंगा, इसको 5 लूंगा, तो इसको 80 लेना पड़ेगा. अब मुझे ये तो ठीक है, दिस इज ऑल राइट, दिस इज वर्किंग गुड. बट मुझे ये भी देखना होगा कि 6 ऐड करने से क्या प्रोडक्ट 3200 होगा. बट इफ यू ऐड 6 हियर, इसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 8. इसमें 6 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा. 6 + 5 11. और 3200 का तो फैक्टर 11 होता ही नहीं है. 11 into any number will not give you 3200. So this is ruled out. This is not possible, right? अगला देखो,
इफ आई टेक x as 2, तो 2 into 2 4 हो सकता है, अनदर पॉसिबिलिटी, एंड 5 into 2 10 हो सकता है, सो 4 into 10, एंड 800 बनाना है तो 40 पहले ही हो चुका है, तो इनटू हाउ मच 20. दिस विल गिव यू अगेन नो 800, और स्मॉल और मीडियम 4 और 10 रुपीज का है, तो दोनों का रेशियो क्या है 2:5 है. सो दिस ऑल्सो विल वर्क. अब इसमें चेक करते हैं कि आप 6 ऐड करने से हो सकता है कि नहीं. अब इसमें 6 ऐड करोगे तो दिस विल बिकम, इसमें 6 ऐड करोगे 4 विल बिकम 10, इसमें 6 ऐड करोगे 10 विल बिकम 16, एंड इसको तो एज इट इज रख देना है. तो आप देख सकते हो ये आपका 3200 हो जा रहा है. वंडरफुल. 200 into 16 will give you 3200. So this fits in very nicely. So I know this is the actual case. This is my case. So पूछा है sum of the original prices of the 3 different sizes. तो एक 4 रुपए का था, एक 10 रुपए का था और एक 20 रुपए का था. 20 plus 10, 30 plus 4, 32, 34. So my answer is 34 rupees. 34 is my answer. Again, a question which does not require any equation solving and anything. It just requires some simple trial and error approach, and you can solve this question in a pretty fast manner. बहुत ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं. चलो नेक्स्ट देखो. एंड दीज आर ऑल कैट क्वेश्चन. रिमेंबर गाइस, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि कैट इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम. कैट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम फॉर दोज पीपल हु डू नॉट प्रिपेयर द वे कैट इज सपोज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. If you prepare with focus on basics rather than mugging up formula and shortcuts, you will be in a nice place in the examination center. But if you bypass basics, if you don't know what is the idea that is governing the formula and you only mug up formula and shortcuts, then obviously that will not help you go places in this exam. So ultimately हमारा focus किधर होना चाहिए? Basics को strong रखना है. फॉर्मूला नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन उस फॉर्मूला के पीछे कौन सा आइडिया है ये मुझे पता होना चाहिए. व्हाट इज द लॉजिक दैट इज ड्राइविंग दैट फॉर्मूला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लॉजिक हैज टू बी वेरी क्लियर. अगर वो समझ में आ रहा है तो फिर कैट का एग्जाम बहुत इजी है. अदरवाइज रटने से, शॉर्टकट याद रखने से, ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, सभी का शॉर्टकट याद रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. प्रैक्टिस विल ऑब्वियसली इज रिक्वायर्ड, बट बिफोर प्रैक्टिस क्लैरिटी ऑन बेसिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, एंड प्रैक्टिस करते समय भी हमें शॉर्टकट नहीं याद करना है. शॉर्टकट अपने आप इंटरनलाइज हो जाएगा. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको दिमाग में शॉर्टकट बैठता जाएगा, आपको इंटरनलाइज होता जाएगा, बट उसको याद रखने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, लेट अस लुक एट दिस वन. फोर्थ वन क्या कहता है? अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 40 लीटर हैज डाई एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन 2:3. ओके, सो एक सॉल्यूशन है जिसमें डाई है और वाटर है. किस रेशियो में है? 2:3 में. 2:3 में. कहता है 40 लीटर है, तो 40 लीटर 2 पार्ट प्लस 3 पार्ट, 5 पार्ट इज 40, सो 1 पार्ट इज 8. 1 part is 8, so 2 part will be 16 and 3 part will be 8 into 3 24. ठीक है. so total 40 लीटर है, 2:3 में है डाई और वाटर. So 2 part plus 3 part, 5 part is 40, so 1 part is 8, so 2 part is 16, 3 part is 24, so 16 and 24. अभी कहता है water is added to the solution to change this proportion to 2:5. इसमें और पानी मिलाया गया, इसमें और वाटर मिलाया गया. अब ये रेशियो कितना हो गया? 2:5 हो गया. तो ये तो 2 पार्ट ही रहेगा, बट ये कितना बन जाएगा? 5 पार्ट. So see, 2 part is still 16, so 1 part is 8, 1 part is 8, तो 5 पार्ट कितना होगा? 40. 40 में से 24 ऑलरेडी है, तो इसमें मैं 16 और मिला दूंगा, सो ये अब हो गया हमारा 40. और अब ये 16 40 यानी कितना हो जाएगा? 2:5. यू कैन डू दिस ओरली, नो, देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग. 2 पार्ट 3 पार्ट, 5 पार्ट इज 40, सो 1 पार्ट इज 8, सो 2 पार्ट इज 16, 3 पार्ट इज 24. ठीक है. इसके बाद इसको मैं पानी मिला के 2:5 किया गया, तो 2:5 किया गया तो डाई तो फिर भी 2 ही रहेगा. सो 2 पार्ट इज 16, इसका मतलब 1 पार्ट अभी भी 8 है. 1 पार्ट 8 है, तो 5 पार्ट बनाना है, तो 5 पार्ट कितना होगा? 40 हो जाएगा. 5 into 8 40. 1 पार्ट इज 8, सो 5 पार्ट विल बी 40. 40 में से 24 पहले से ही है, तो और कितना मिला दे? 16 मिला दे, तो 40 हो गया. नाउ क्या कहता है? 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सोल्यूशन इज टेकन आउट. अब इसमें से 1/4 निकाल दिया गया. अब देखो, इफ यू रिमूव 1/4 is removed,
तो यहाँ से भी 1/4 निकल जाएगा, यहाँ से भी 1/4 निकल जाएगा, तो ये 16 का 1/4 निकल जाएगा, यानी 4 निकल जाएगा, तो डाई कितना बचेगा, 12 बचेगा। और 40 इसका भी 1/4 यानी कि वाटर का 10 लीटर निकल जाएगा, 40 का 1/4 10 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 30 पार्ट। सो अभी कितना हो गया, डाई और वाटर कितना रहेगा, तो 12 एंड 30। अभी कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड टू द रिमेनिंग सोल्यूशन टू ब्रिंग द प्रोपोर्शन बैक टू 2:3। अब इसमें कितना डाई मिला दें कि वापस 2:3 हो जाए। सो डाई मिला के इसको 2:3 करना है, वाटर तो चेंज करना नहीं है। और ये 2:3 कब होगा, जब ये 3 पार्ट रहेगा, वाटर तो चेंज नहीं हो रहा ना, वाटर विल रिमेन 30 और ये 2:3 बन जाएगा। इसका मतलब 3 पार्ट कितना होगा, 30 होगा। सो 1 पार्ट कितना होगा, 10 होगा। 3 पार्ट इज 30, 1 पार्ट इज 10, 1 पार्ट इज 10, तो मुझे डाई को 2 पार्ट करना है, तो 2 पार्ट विल बी 20, तो मुझे इसको 20 बनाने के लिए और कितना मिलाना होगा, 8 और मिलाना होगा। सो द आंसर इज 8, है ना, 8 लीटर और मिला दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा जो सोल्यूशन है वो चाहिए कितना, 2:3 प्रोपोर्शन में चाहिए, 2:3 हो जाएगा 8 लीटर डाई मिलाने से। आई होप इट इज क्लियर। मैं क्या कर रहा हूं, इसका 1/4 निकाला गया, तो 1/4 निकाला गया तो 1/4 डाई से भी निकल जाएगा, 1/4 वाटर से भी निकल जाएगा, बिकॉज इट्स अ सोल्यूशन, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। सो इसमें से 1/4 निकाल दोगे तो 4 लीटर चला गया, तो बचेगा 12। इसका 1/4 10 निकाल दोगे तो बचेगा 30। अब इसमें डाई ऐड करके 2:3 करना है, इसका मतलब वाटर का तो चेंज नहीं होगा वॉल्यूम, वाटर तो 30 लीटर ही रहेगा। अभी वाटर 30 लीटर, 3 पार्ट है, सो 3 पार्ट इज 30, सो 1 पार्ट इज 10, 1 पार्ट इज 10, सो 2 पार्ट विल बी 20। तो डाई को मुझे 2 पार्ट बनाने के लिए 20 करना होगा, 20 के लिए मुझे कितना मिलाना होगा, 8 और मिला देना होगा, तो 20 हो जाएगा। सो माय आंसर इज 8 लीटर। ओके, नेक्स्ट वन। क्या कहता है, सम ऑफ मनी स्प्लिट अमंग अमल, सुनील एंड मीता, so that the ratio of shares of Amal and Sunil is 3:2। अमल और सुनील का रेशियो है 3:2। फिर कह रहा while the ratio of shares of Sunil and Meeta is 4:5। फिर कहता है the difference between the largest and the smallest of these shares is 400, then Sunil share in rupees is। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज नॉट इवन नो, आई मीन these types of questions do not come in exams like CAT, but they have asked in CAT 2020। very simple question, this is clearly based on combining these two ratios। यहाँ भी सुनील है, यहाँ भी सुनील है, मुझे दोनों को कंबाइन कर देना है। कंबाइन कैसे करूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इस रेशियो को कर दूंगा 6:4। अभी सुनील यहाँ भी 4 है, सुनील यहाँ भी 4 है, कंबाइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6:4:5। अमल, सुनील एंड मीता, है ना, अमल, सुनील एंड मीता। अभी पूछता है जो लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस है कितना, 400। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज शेयर्स इज 400। लार्जेस्ट है 6 पार्ट, स्मॉलेस्ट है 4 पार्ट, डिफरेंस हो गया 2 पार्ट, 2 पार्ट इज 400, so 1 part is 200, 1 part is 200। तो पूछता है कि सुनील का शेयर बताओ, सुनील का शेयर कितना है यहाँ पे, 4 पार्ट, so सुनील का शेयर इज 4 पार्ट, so 4 part will be 800 rupees, so my answer is 800 rupees। 800 is the answer here। So you can see these questions are not very difficult, these are questions which will not take more than 1 minute of your time to solve it in the exam situation also। So there are many questions in CAT, especially in topics like arithmetic। If you prepare well, you'll be able to answer many of these questions in a very short time also। So that's it for today। In the next video also we'll continue with the same chapter, ratio, proportion and variation। We have discussed only ratios till now। अगले वीडियो में we'll discuss something about proportion। Okay, thank you guys, thank you for watching।